Very good evening, all the participants. Today, we'll start with this liquidation process. And please note that one process we have already studied in detail. So, CIRP process. And some of the things which we studied in CIRP process will be of use to us in liquidation process also. So, what we will do? We will try to cover the liquidation process in a day or two, right? So let me share my screen with you. I hope my screen is visible. Is it visible? Is my screen visible? Yes, anyone? Yes, sir. Yes, sir, visible. Okay, okay. So let us try to read it by way of a summary. Now, what is the trigger point when liquidation starts? We have studied in CIRP that the COC may also recommend liquidation, right? Now, what could be the circumstances when COC will recommend the liquidation? What could be the circumstances when सर COC रिजोल्यूशन will recommend the liquidation? सर अगर मेरे को जैसा रिजोल्यूशन प्लान सीओसी चाह रहा है वैसा रिजोल्यूशन प्लान नहीं हो रहा है Right. Maybe what they are getting as a they are value. not satisfied with that. Yes, they are not satisfied. They are not, and 66% of the people, they cannot come to an agreement regarding whatever resolution plan or plans they received, or they did not receive any resolution plan, or they think that no resolution plan is likely to come. So even early recommendation for liquidation can also be made, right? So these are some of the circumstances when the COC may say that, okay, let us go in for liquidation because the resolution is not visible, right? So first situation will be when we do not receive a resolution plan and the period has expired. So expiry of the CIRP period or the permitted maximum extension timeline under section 12 or the fast track CIRP timeline under section 56 without receiving a compliant or viable resolution plan, right? Second situation is plan or plans were received, but the COC was not satisfied. So they rejected a submitted resolution. First is no plan was received. Second is the plan or plans were received, but they were either not technically compliant or the COC was not satisfied or statutory requirements which are given in section 30 subsection 2 were not met, right? So this could be another situation. I hope you can read it from the screen. Yes, sir. And it could be intimation by the RP that the committee of creditors has resolved to liquidate the company by a vote of not less than 66% of total voting share. Now suppose the COC decides that okay, COC has resolved to liquidate the company. How they will inform the adjudicating authority? Is there any form for this? Yes, please. Now the COC has decided that okay, let us go in for liquidation. Now, what is the way they will inform? They have to intimate the adjudicating authority, no? So, what is the mode of intimation? Public notice? No. It is by way of an IA, interlocutory application. So, anything for which form is not prescribed and you are required to intimate the adjudicating authority is by way of an IA, right? सर फिर से रिपीट करिएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को adjudicating authority को you have to inform by way of an interlocutory application, IA. इंटरलॉक interlocutory application. लॉक
So this is the way of informing if you do not have a specified form for any action which you want the adjudicating authority to take, right? There are various forms also, but if there is no form prescribed, then what is the way of intimating? You have to file an interlocutory application, right? Now, what the adjudicating authority will do? First is they will pass an order that the corporate debtor be liquidated, right? And what is the manner of liquidation? That is given in chapter 3, right? Public notice will be issued stating that the corporate debtor has entered liquidation, inviting the stakeholders to file claims. This public notice has to be issued by the liquidator. And then regulatory notification, transmit a copy of the formal order to the authority with which the corporate debtor is registered, registrar of company, right? So this is the way in which liquidation will start. Now, what is the distinction from CIRP? During CIRP, the RP is required to maintain the CD as a going concern. He has to preserve and protect the assets. But liquidation, it is a transition. It marks a transition towards orderly asset breakdown, realization and structural wind down. Even during liquidation, attempt could be made to sell it as a going concern. Of course, these two things will be given priority. We have already read in regulation 39 of CIRP regulations that okay, even while recommending liquidation, the COC may direct the RP to first explore the possibility of selling the CD either as a going concern or business of the CD as a going concern, right? Can any one of you give me the exact regulation which talks of this CIRP regulation by way of which the COC will direct the RP to explore the possibility of selling it as a going concern? 39, I have given you hint. So section 20, sir. हैं? Section 20. नहीं, रेगुलेशन की बात कर रहा हूं. रेगुलेशन में बोलते हैं ना. This is given in regulation number 39C. So regulation 39C, if you see of CIRP regulations, it says while approving a resolution plan under section 30 or deciding to liquidate the corporate debtor under section 33, the committee may recommend that the liquidator may first explore sale of the corporate debtor as a going concern under clause E of regulation 32 of liquidation process regulations or sale of the business of the corporate debtor as a going concern under clause F thereof if an order for liquidation is passed under section 33. So this we have already read in regulation number 39C of CIRP regulations. Okay. Sure. Why this is important? Why we are putting a stress on sale as a going concern? Because that way the employment could be retained. There will be no loss of employment because if you sell it as a going concern even during liquidation, so in all probability the employees will be retained and there will be not much loss in value, right, in enterprise value. Now, appointment and continuity of the insolvency professional. So there could be various scenarios. So under section 34, so this was all about section 33. Now let us go to section 34, which says that under section 34, the resolution professional appointed for the CIRP or the prepackaged insolvency resolution process ordinarily transitions to act as the liquidator. So there is a transition. As per the latest amendments, which are not in our syllabus, the liquidator will be different ordinarily. But as per our syllabus, we have to read that this RP may transition as liquidator, right? Of course, he has to submit a formal written consent that he wants to act because he may like to leave also, right? However, the adjudicating authority shall actively replace the insolvency professional, number one, if the resolution plan submitted during the CIRP was rejected specifically for failure to meet the mandatory requirements
which are outlined under section 30 subsection 2. Because as we know, section 30 subsection 2 lays down certain requirements which the RP has to ensure are fulfilled. Can you tell me 2-3 requirements of section 30 subsection 2? MBS Kumar ji, any idea? What are the major elements of section 30 subsection 2, the compliance to which has to be ensured by the RP? Sir, realizable value is at least liquidation value. No. Sir, insolvency resolution process cost is to be paid first. Right, that's the first point. And then liquidation value to operational creditors and dissenting And financial creditors. dissenting financial right? creditors. Yes, Then sir. basically there should be no contravention of any law, right? Law. So whenever Yes, sir. reading any section, we have to revise in our mind the previous sections also, right? So if you are reading, it says that, okay, for failure to meet the mandatory requirement, then we must know the requirements which are given under section 30 subsection 2, right? The Insolvency and Bankruptcy Board of India formally recommends replacement in writing for reasons explicitly recorded. So IBBI may record the reasons that, okay, this RP needs to be replaced by another liquidator, right? So first thing, RP may transition as liquidator. But what are the circumstances when RP will be replaced? When he submitted the plan, but it did not meet the requirements of section 30 subsection 2 and the RP failed to apply his mind. IBBI recommended replacement, or the insolvency professional fails to submit the mandatory written consent in the specified form. What is the specified form which an RP has to formally sign while acting as liquidator? Form 2. क्यों काजल किरण जी? So written consent, sir, of हाँ. the RP. Double A, No. sir. भाई एक डबल ए बोल रहे हैं, एक टू बोल रहे हैं. फॉर्म नहीं सर, हाँ जी. Any section you can point out? कोई सेक्शन भी है क्या? आप सेक्शन 34 सबसेक्शन 6 देखिए. सेक्शन 34 सबसेक्शन 6 देखिए क्या बोलता है. रिटन कॉन्सेंट. तो रिटन कॉन्सेंट का फॉर्म नेचुरली इसके अंदर ही होगा, लिक्विडेशन में ही होगा ना. तो काजल किरण जी फॉर्म देख पा रहे हैं आप? Sir, just a minute. 31. भाई सेक्शन 34 सबसेक्शन 6 says that there has to be a written consent in the prescribed form. तो prescribed form में तो फॉर्म तो prescribed होगा ना. सर मैं पढ़ूँ सर 31A का 11 नंबर. File an application after obtaining the written consent of the proposed liquidator in form AA of the schedule 2 वो तो अलग बात है ना, वहां तो चले गए हम, CIRP से बाहर आ गए, अब हम लिक्विडेशन में आ गए. हाँ लिक्विडेशन की बात करो सर. तो 31 लिक्विडेशन में कहाँ सेक्शन तो 33 से शुरू होता है. नहीं सर, रेगुलेशन 31 है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी. फॉर्म AA है रिटन कंसेंट टू एक्ट एज लिक्विडेटर. यस सर. फॉर्म AA ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस आपको पढ़ना है सेक्शन 34 सबसेक्शन 6. वह लिखा नहीं है सर क्या लिखा नहीं? फॉर्म. क्यों नहीं लिखा? अरे भाई उसने लिख तो दिया, उसने क्या लिखा? वो सारी बात थोड़ी लिखेगा, इन द स्पेसिफाइड फॉर्म लिखा है उसने. तो Sir, स्पेसिफाइड written consent. Sir, written consent to act as liquidator is also form AA. हाँ वही बिल्कुल. ओके सर. ओके. हाँ
नरेंद्र जी यार मेरी बेइज्जती मत करवा देना भाई। मैं तो पूरी सर, जान लगा देता हूँ यार आपको पढ़ाने में, आप ऐसे करते हो तो गड़बड़ है ना फिर। अरे सर, चलिए, मेरे को अपनी इज्जत की ज्यादा चिंता है। नहीं नहीं सर। चलिए, वेस्टिंग ऑफ द पावर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम। The appointment of a liquidator instantly alters the administrative hierarchy of the corporate debtor. Because till now, the powers of the board were suspended only, but now they cease to exist, right? So all operational powers previously vested in the board of directors, KMP, and partners of the corporate debtor, they cease immediately. So these collective governance powers are fully vested in the liquidator now, right? Because now the liquidator is all in all. So the personnel of the corporate debtor, they remain legally bound to extend all necessary assistance and cooperation to the liquidator. So board of directors cannot say that, okay, our powers have ceased, right? So, but though, so we are no longer accountable. So they have to fully cooperate with the liquidator, right? And it is deemed to be a notice of discharge to all the employees unless it is decided to run it as a going concern. So there is a small difference. During CIRP, board continues to exist, but during liquidation, liquidator is all in all, and the board of directors, KMP, and partners, even employees, so they are deemed to have vacated their offices. So it is deemed to be a notice of discharge to all the employees. Can you give me the section for this? Section for this is section 34, subsection 2. On the appointment of a liquidator, all powers of the board of directors, KMP, and the partners of the corporate debtor, as the case may be, shall cease to have effect and shall be vested in the liquidator. Right? And you have to read it along with section 33, subsection 7, which says that the order for liquidation under this section shall be deemed to be a notice of discharge to the officers, employees, and workmen of the corporate debtor, except when the business of the corporate debtor is continued during the liquidation process by the liquidator. Okay. Now fees. What is the fees? Mode of payment of fees to the liquidator. So liquidator naturally charges fees, being a professional, for the conduct of proceedings in strict proportion to the value of the liquidation estate assets. The fee structure follows a strict tier system determined sequentially. First by the COC during the CIRP under Regulation 3090. So we again have to refer to CIRP regulations, wherein the COC asks the RP in the final stages that in case he is appointed as a liquidator, what fees he will be charging, right? It could be, in case it is not decided by the COC during CIRP, it can be decided by the stakeholders consultation committee in its first meeting if the COC did not fix it, or as a regulatory percentage based on the amount realized and distributed within precise timelines. First 6 months, next 6 months, and on realization on distribution. So there is a specified chart for this, right? So can you tell me the section? अब देखिए थोड़ा सा ना हमारे को नेक्स्ट स्टेज पर आना है। अभी हम फर्स्ट, हमने जैसे स्कूल में भी क्या होता है, आप फर्स्ट क्लास में आपको बिल्कुल पढ़ाते हैं एक एक करके। जब आप सेकंड में आ जाते हो तो ये मान लेता है टीचर भी कि आपको फर्स्ट वाला जो है वो तो आता ही आता है ना। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जब आप यहां बैठे हो तो आपके पास बेयर कोड की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी है कम से कम, है ना। और आपको जो मैं सेक्शन बताऊं तो सेक्शन आप निकाल सकते हो। अगर मैं सीआईआरपी का सेक्शन बताऊंगा, सीआईआरपी का रेगुलेशन, तो आप यू कैन गो टू दैट सेक्शन या रेगुलेशन, एटलीस्ट दिस मच इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द चार्ट, ये फीस का चार्ट कहां दिया गया है? ये जो फीस का चार्ट है ये लिक्विडेशन रेगुलेशंस में आपको मिलेगा। रेगुलेशन 4 सर, है रेगुलेशन 4। रेगुलेशन 4। हम्म। तो रेगुलेशन 4 हमने कवर कर लिया। ठीक है, रेगुलेशन 4 में वही बातें हैं जो यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, पहले सीओसी फिक्स करेगी, सीओसी ने नहीं किया स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी, और वो भी नहीं होगा तो इस चार्ट के हिसाब से। ठीक है, चलिए
ये आज समरी फॉर्म में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप, कल संडे है तो कल आप अपनी पढ़ाई कर सको, है ना। अगर आप लिक्विडेशन भी पढ़ो तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ समझ में ही ना आए, लिक्विडेशन भी समझ में आना चाहिए। नाउ स्टैट्यूटरी पावर्स एंड ऑपरेशनल ड्यूटीज ऑफ द लिक्विडेटर। सो व्हाट आर द ड्यूटीज? So subject to the overriding directions of the adjudicating authority, the liquidator is endowed with broad statutory powers under section 35. So 33 we have read, 34 we have read. Now we are at 35. To ensure an optimal and transparent asset unwinding process. One is the claim verification. देखिए वहां पर क्या फर्क है? During CIRP you are collating the claims. You are not rejecting any claim, right? But here what you are doing? You are doing verification. So you have to verify, evaluate and settle claims submitted by all categories of creditors. Custodial custody. You have to take into immediate custody or control all assets, properties, effects and actionable claims belonging to the corporate debtor. Valuation and reporting. To independently evaluate and appraise the assets and properties of the corporate debtor and prepare an asset memorandum. During CIRP, you are preparing an information memorandum. Here you are preparing an asset memorandum. And then asset protection. You have to take all necessary measures to protect, preserve and maintain the assets and properties of the corporate debtor. So this is a brief of section 35. So going concern, continuity. You have to carry on the business of the corporate debtor to the extent necessary for its beneficial liquidation as a going concern. Then asset divestment, to sell the immovable property, movable property and actionable claims by public auction or private contract with power to transfer titles. Financial execution, you can draw, accept, make and endorse negotiable instruments, bills of exchange, hundies, promissory notes on behalf of the corporate debtor. Then litigation management, to institute or defend any civil or criminal suit, prosecution or legal proceeding in the name and on behalf of the debtor. Because now the moratorium has been lifted, right? So there could be cases which could resume, which were there prior to the CIRP process. But if you want to institute any suit, then what will happen? In this case, you have to obtain the permission of the adjudicating authority, right? So section 33, if you read section 33 subsection 5, section 33 subsection 5 says, subject to section 52, when a liquidation order has been passed, no suit or other legal proceeding shall be instituted by or against the corporate debtor, provided that a suit or other legal proceeding may be instituted by the liquidator on behalf of the corporate debtor with the prior approval of the adjudicating authority. Now, what is the meaning? There are three things. Let me show you that also. Section 33, subsection 5. Yes. Just a minute. Section 33, section 5. So I hope it is visible now. Section 33, subsection 5, what it says? There are three things. Number one, subject to section 52. What is the meaning? Subject to section 52. That means the rights of section 52 talks of the rights of secured creditor, right? So it says subject to section 52, when a liquidation order has been passed, no suit or other legal proceeding shall be instituted. क्या मतलब हो गया कि नया कोई आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, लेकिन पुराने वाले कंटिन्यू रह सकते हैं। वहां पर क्या लिखा था सेक्शन 14 में? सेक्शन 14 में लिखा है कि भाई कंटिन्यू भी नहीं रह सकते और इंस्टीट्यूट भी नहीं हो सकते। सेक्शन 14 की अगर आप लैंग्वेज देखें तो सेक्शन 14 क्या बोलता है?
सेक्शन 14 आपका बोलता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स और कंटिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग सूट्स और प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 14(1)(a। और यहां क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है इंस्टीट्यूटेड, कंटिन्यूएशन की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यू रह सकते। तो तीन बातें, पहली बात राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर विच आर गिवन इन सेक्शन 52, उसको अलग कर लीजिए, उस पर कोई बार नहीं है। सरफेसी में एक्शन अलाउड है, सीआईआरपी में अलाउड नहीं है, यहां पर अलाउड है। दूसरा, नया सूट इंस्टीट्यूशन नॉट अलाउड, लेकिन कंटिन्यूएशन अलाउड है। सीआईआरपी में कंटिन्यूएशन भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसने कोई सूट फाइल करना है, लिक्विडेटर ने, तो इसको परमिशन लेनी है किससे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिस्टिंक्शन, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात है, ये क्या कहता है, रेगुलेशन 46 से, रेगुलेशन 46 से बोलता है वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज गिवन फिजिकल पोजीशन टू एन अलॉटी इन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट सच स्पेसिफिक एसेट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट प्रोटेक्टिंग होम बायर्स। अभी हम लिक्विडेशन एस्टेट की बात करेंगे कि लिक्विडेशन एस्टेट क्या है। लिक्विडेशन एस्टेट में वो एसेट्स हैं जिसको आपको सेल करना है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपका कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है and you have already given the physical possession, so then it shall not form part of the liquidation estate, ठीक है। इसके लिए ये आपका रेगुलेशन नंबर है 46A, ठीक है। अच्छा, सीआईआरपी में भी एक सेक्शन, एक रेगुलेशन हमने देखा था सीआईआरपी में भी, काजल किरण जी, एक रेगुलेशन हमने देखा था सीआईआरपी में। वो रेगुलेशन क्या बोलता था कि इफ द होम बायर हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस, देन विद द परमिशन ऑफ द सीओसी द आरपी विल फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन। पढ़ा था ना हमने। Yes, sir. Yes, sir. तो वो क्या रेगुलेशन, आप रेगुलेशन नंबर बता सकते हो? Regulation 16 से related. हाँ, कोई नहीं, आपसे देख लीजिए। तो देखो, पढ़ने का यही तरीका है कि सर अपने दिमाग को सर घुमाते 4E रहना लिखो है। सर, सर 4E लिखो ना एक बार, 4E, CIRP 4E, हैंडलिंग ओवर पोजीशन, रियल एस्टेट एंड फैसिलिटेड रजिस्ट्रेशन। वेरी गुड। रेगुलेशन नंबर 4E, हैंडिंग ओवर द पोजेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द कमिटी विद नॉट लेस देन 66%। तो क्या देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि होम बायर ने अपना पार्ट ऑफ द प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको सीओसी से परमिशन लेना विद नॉट लेस देन 66%। और फिर आपको क्या करना है, आपको फैसिलिटेट करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कब करना है, वेयर द अलॉटी हैज रिक्वेस्टेड फॉर द सेम एंड हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट अंडर द एग्रीमेंट। तो सबसे पहले अलॉटी का रिक्वेस्ट आना चाहिए कि भैया देखो, मैंने अपना पेमेंट कर दिया है, आई हैव परफॉर्म्ड माई पार्ट, और मेरे को रजिस्ट्रेशन करवा दो प्रॉपर्टी का, फ्लैट का, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये सीओसी से अप्रूवल लेगा, और सीओसी अगर अप्रूव कर देगी तो रजिस्ट्रेशन करवाए, ठीक है। अब यहां लिक्विडेशन में क्या बोलता है, लिक्विडेशन में रेगुलेशन 46 है। तो रेगुलेशन 46 से क्या बोलता है, वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज गिवन फिजिकल पोजेशन टू एन अलॉटी इन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट सच स्पेसिफिक एसेट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट प्रोटेक्टिंग होम बायर्स, ठीक है। चलिए, नाउ द लिक्विडेशन एस्टेट, सेक्शन 36 क्या बोलता है, सेक्शन 36 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और सेक्शन 36 में क्या है कि जो भी एसेट्स हैं कॉर्पोरेट डेटर के, वो सारे के सारे लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनेंगे, ठीक है। सो द लिक्विडेटर फॉर्म्स ए स्पेसिफिक लिक्विडेशन एस्टेट एक्टिंग एज अ फिड्यूशियरी
फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स। ठीक है, सो ये जो लिक्विडेटर है, ही इज एक्टिंग एज ए फिड्यूशियरी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स। ठीक है, द एसेट encompasses a wide range of assets, rights and financial interests. पहला क्या है? एनी एसेट्स ओवर विच द डेटर हैज ओनरशिप राइट्स एज एविडेंस इन द बैलेंस शीट, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज और एसेट रजिस्ट्रीज। अब उसके पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में देख लेगा जो भी एसेट है वो आपका लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनेगा। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, ठीक है, या फिर एसेट रजिस्ट्रीज। ये एसेट रजिस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं? सरसई, एमसीए, एनईएस। There could be assets that may or may not be in physical possession of the corporate debtor, including fully encumbered assets. ठीक है, वो भी आपके लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनेंगे। ठीक है, फिजिकल हो सकता है आपके पास ना हो, जैसे मान लीजिए आपने ट्रक्स लीज पर दे रखे हैं, तो ट्रक्स हो सकता है आपकी बाउंड्री में नहीं हो। ठीक है, कई बार एसेट थर्ड पार्टीज के पास खड़े होते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन you have to include them in liquidation estate. फिर tangible assets, movable and immovable property, and intangible assets, intellectual property, patents, securities, insurance policy. Any assets or values recovered through successful litigation for the avoidance of PUFE transactions. एक मोटी बात बता दीजिए कि ये जो लिक्विडेशन एस्टेट है, इसको कहां पर उसकी वैल्यू आप दोगे या नहीं दोगे? क्या दोगे इसको? ये जो लिक्विडेशन एस्टेट है, ये कैसे बनाओगे आप? उसमें वैल्यू अगर कोई लोगे तो क्या वैल्यू लोगे? सर लिक्विडेशन वैल्यू देंगे, जिस प्राइस पे उसको हम सेल कर सकते हैं। क्यों काजल जी, आप बताओ। सर मेरे को पहले क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लिक्विडेटर हो, ठीक है, आपने लिक्विडेशन एस्टेट बनानी है, तो लिक्विडेशन एस्टेट्स में ये बात तो क्लियर है कि आपको एसेट्स इंक्लूड करने हैं, एसेट्स की लिस्ट बनानी है बेसिकली, है ना? भाई अगर आपने घर बेचने का फैसला ही कर लिया तो क्या करते हो? घर का सारा सामान इकट्ठा कर देते हो, भाई कौन कौन सा बेचने वाला है ना, या एक लिस्ट बना लेते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन, क्या इसमें वैल्यू दोगे या नहीं दोगे? पहली बात। या सिर्फ लिस्ट ऑफ एसेट्स बनाओगे? क्या करोगे आप? सर पहले तो लिस्ट ऑफ एसेट्स बनेगा सर। हाँ नहीं सर, बिल्कुल सही। हाँ, क्यों अमेश कुमार जी, क्या कहते हो आप? We have to do realizable value. We have to take. Those values are there with you, fair value and liquidation value. But what I feel is personally कि यहां पर वैल्यू देना जरूरी नहीं है, वैल्यू इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको क्या करना है? यू हैव टू फॉर्म एन एस्टेट ऑफ द एसेट्स, ऑफ कोर्स दैट विल बी देयर, बट अब वैल्यू, अभी तो वैल्यूएशन हुआ भी नहीं ना, अभी तो लिक्विडेशन में, अभी तो लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है। लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, आपने क्या किया? लिक्विडेशन एस्टेट बना ली। लिक्विडेशन एस्टेट में पहला काम आपका क्या है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एसेट्स कौन कौन से हैं। तो यहां पर जो स्ट्रेस है ना, दैट इज ऑन एसेट्स, नॉट ऑन द वैल्यू। वैल्यू तो है ही आपके पास, फेयर वैल्यू या लिक्विडेशन वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू अभी नहीं है, रियलाइजेबल वैल्यू तो बाद में आएगी एज पर रेगुलेशन 35, व्हेन यू विल अपॉइंट अ वैल्यूअर ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस, राइट? So basically, the stress is on assets, not on value here. 4.2, absolute statutory exclusions. Now, कौन कौन से एसेट्स आपको एक्सक्लूड करने हैं? ये सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 में दिया गया है। टू प्रोटेक्ट थर्ड पार्टी राइट्स, द कोड explicitly bars specific assets from inclusion in the liquidation estate. There could be assets owned by the third party in temporary possession of the debtor, assets held in trust, bailment contracts, operational use only leases, right? Then all sums due to workmen or employees from the provident fund, pension fund, and the gratuity fund. So these are treated as sacrosanct and untouchable. So if the employer has deducted an amount on account of this provident fund, pension fund, gratuity fund, then
this is not to be included in the liquidation estate because it is to be paid separately. क्योंकि liquidation estate का मेन मकसद क्या है? लिक्विडेशन एस्टेट का मेन पर्पज ये है कि टू डिस्ट्रीब्यूट टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स एज पर द वाटरफॉल मैकेनिज्म विच इज गिवन इन सेक्शन 53. ठीक. देन पर्सनल एसेट्स ऑफ द इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, मेंबर्स और पार्टनर्स प्रोवाइडेड दे आर नॉट लिंक्ड टू अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस. आप सेक्शन 36 ध्यान से पढ़िएगा दोबारा, वो कहीं पर भी वैल्यू की बात नहीं करता, वो सिर्फ एसेट्स की बात करता. Then assets of any Indian or foreign subsidiary where the corporate debtor holds equity shares. ठीक है. So what is included? Encumbered assets, they are included. ठीक है. Provident fund, gratuity fund, they are not included, strictly excluded. Subsidiary assets, strictly excluded. And home buy units, possession already given, strictly excluded. So these are the inclusions and exclusions. Now claims management, consolidation, verification and appeals. So now you have to read section 38 along with regulations 16 to 20. So this talks of consolidation of claims, section 38. So the liquidator must receive, collect and collate all the claims within 30 days from the liquidation commencement date. Creditors must submit their claims utilizing specific statutory forms. So form C is there for operational creditors, except workmen or employees. It requires invoices, contracts or financial statements. Form D for financial creditors must be submitted by electronic means, relying heavily on information utility records. Form E for individual workmen or employees, and Form F for an authorized representative submitting a collective claim, and Form G for any other category of stakeholders. Now, here there is a question for you. Suppose a person does not submit a claim form during liquidation, but he submitted a claim form during CIRP. CIRP में claim form भरा था उसने, अब liquidation में नहीं भरा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे बीइंग ए लिक्विडेटर? दिस इज द क्वेश्चन. और क्या कोई रेगुलेशन है इसके लिए जो बताता है कि आपको क्या करना है? भाई हो सकता है ना, CIRP भरा उसने, अर्लियर क्लेम को कंसिडर कर लेगा सर वो. वेरी गुड. और कौन सा रेगुलेशन है उसके लिए? सर हाँ देख लीजिए एक बार. रेगुलेशन नंबर 30 देखिए एक बार. रेगुलेशन 30 अगर हम देखें तो टॉक्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या कहता है? The liquidator shall verify the claims submitted within 30 days from the last date for receipt of claims and may either admit or reject the claim. यहां पर रिजेक्शन का भी पावर है, जो पावर आपके पास CIRP में नहीं. In whole or in part as the case may be, provided that. So I am reading from regulation number 30 of liquidation regulations. Provided that the liquidator shall also verify the claims collated during the CIRP process but not submitted during the liquidation process. हो सकता है ना? Within 30 days from the last date for receipt of claims during liquidation process and may either admit or reject the claims in whole or in part. लेकिन क्या होना चाहिए? ये claims collate होने चाहिए during CIRP period. तो ऐसा हो सकता है कि उसने कोई क्लेम सबमिट ही नहीं किया हो, तो फिर तो भी आपको उसको कंसिडर करना है अगर उसने CIRP पीरियड में अपना क्लेम सबमिट किया है और इन्होंने कोलेट किया है. ठीक है. वेरिफिकेशन, एडमिशन एंड रिजेक्शन, सेक्शन 40 and 41. So the liquidator is mandated to verify the claims within 30 days. So for receipt of claims 30 days and another 30 days for verification.
क्योंकि यहाँ ज्यादा स्क्रूटनी होनी है। द लिक्विडेटर इज मैंडेटेड टू वेरीफाई क्लेम्स विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट। फॉलोइंग वेरिफिकेशन द लिक्विडेटर may admit or reject claims in whole or in part. If a claim is rejected, the liquidator must record the specific reasons in writing, and the decision must be communicated to the creditor and the corporate debtor within 7 days of the decision. ठीक है। अब मान लीजिए किसी का क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो वो क्या करेगा? उसके पास राइट ऑफ अपील है। सो ए क्रेडिटर who is aggrieved by the decision of the liquidator accepting or rejecting a claim holds a clear statutory right to appeal to the adjudicating authority. So this appeal must be filed within a strict limitation period of 14 days from the date of the receipt of the liquidator's decision. ठीक है। और वो उसका जो भी डिसीजन होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, दैट हैज टू बी कंप्लाइड। ठीक है। नाउ अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, पीयूएफई ट्रांजैक्शंस। ये पीयूएफई ट्रांजैक्शंस क्या है? सो देयर कुड बी ट्रांसफर if a debtor transfers property or creates a security interest that puts a specific creditor, surety or guarantor in a Sorry, sir, sorry to interrupt you. Yes, As sir. you said, if a person is aggrieved by the decision of the liquidator, so he can go to appellate tribunal, and the decision of appellate tribunal will be final. So NCLT is the final authority. नहीं, मैं समझा नहीं। नहीं, देखिए ऐसा ना, यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी यहां हम पढ़ रहे हैं कि लिक्विडेटर ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, तो अब ये क्या है? फोरम क्या है आपके पास? Exactly. एनसीएलटी जा रहे हैं। हाँ, एनसीएलटी के अच्छा, डिसीजन से ठीक है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू कैन गो टू एपीलेट ट्राइब्यूनल। वो तो हमेशा ही है, वो एक अलग चीज है, वो सेक्शन 60 में हम पढ़ेंगे। Fine. My question was, if I'm not satisfied with the decision of NCLT as well, Then you can approach Supreme Court. okay. Thank you, sir. But Supreme Court will entertain only question of law, not of facts. Not fact. Okay, sir. Thank you. है ना? हाँ। तो वो तो ये सेक्शन 42 में नहीं लिखा है कि एनसीएलटी में जाना है, वो आपको सेक्शन 60 में मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप इसके साथ में सेक्शन 60 पढ़ोगे तो सेक्शन 60 ये सब बातें करता है, और सेक्शन 61 करता है। 61 कहता है कि भाई कोई भी जो ऑर्डर है, ठीक है, वो आप अपील कर सकते हो टू एपीलेट अथॉरिटी। सेक्शन 61 में वो एक डिफरेंट चीज, वो तो फोरम है ही ना आपके पास। बट यहां हम क्या पढ़ रहे हैं कि एनसीएलटी के पास आपको जाना। उसके बाद आ गया आपके पास पीयूएफई ट्रांजैक्शंस। ये पीयूएफई ट्रांजैक्शंस क्या है भाई? हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी पढ़ा सेक्शन 5 सब सेक्शन 24 में। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी क्या है? रिलेटेड पार्टी कौन है? रिलेटेड पार्टी रिलेटिव भी हो सकता है डायरेक्टर का या पार्टनर का इन केस ऑफ एलएलपी। ठीक है। या खुद डायरेक्टर या पार्टनर होगा एलएलपी का, या कोई शेयर होल्डर होगा, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, या फिर ऐसा होगा जिसके एडवाइस इंस्ट्रक्शंस पर बोर्ड काम करता है, बेसिकली, है ना? इन्फ्लुएंसर समझ लो आप। तो अब जो इन्फ्लुएंसर है, जो उसके साथ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, हमारे को उसको ज्यादा क्लोजली देखना है। तो ये जितने भी सेक्शंस हैं 43 से लेकर के सेक्शन 51 तक, ये पीयूएफई ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। और पीयूएफई ट्रांजैक्शंस में बेसिकली क्या है कि आपने उसको फेवर किया होगा, है ना? क्योंकि अब आप लिक्विडेशन स्टेज में एंटर कर चुके हो, और लिक्विडेशन में एक सेट मैकेनिज्म है। इधर आप लोग अपने एसेट्स की इकट्ठे कर रहे हो कि कौन कौन से एसेट्स आपने बेचने, उधर एक लेने वालों की लाइन लगी हुई है। ठीक है। उस लाइन में सबसे पहले कौन खड़ा है? जो प्रोफेशनल है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या लिक्विडेटर, सबसे पहले उसको देने हैं। उसके बाद में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, या वर्कमैन को आप प्रेफरेंस दोगे, फिर एम्प्लॉयज को, फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, उसके बाद में गवर्नमेंट क्रेडिटर्स को, इस तरह से फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। एक पूरी सेट लाइन है। अब आपने क्या किया? उस लाइन को डिस्टर्ब कर दिया। उस 53 में जैसा लिखा हुआ है वैसे ना दे करके आपने एक आदमी को प्रेफरेंस दे दिया। और क्या लाइक्लीहुड है? एवरी लाइक्लीहुड इज दैट यू माइट हैव प्रेफर्ड दी पर्सन्स हु आर योर रिलेटेड पार्टीज, है ना? मे और मे नॉट बी, लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी है तो ज्यादा क्लोजली आपको देखना है। ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपने रिलेटेड पार्टी को प्रेफर किया होगा।
है ना। अगर कोई आदमी कंपनी से पैसे भी निकालता है तो वो क्या करता है, वो बेसिकली डायरेक्टर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा, किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ लिखा है, सेक्शन 43 अगर हम पढ़ें तो क्या लिखता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर, श्योरिटी और गारंटर, राइट। तो आप क्या करोगे, या तो ट्रांसफर कर दोगे प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी आपको सेक्शन 3 सब सेक्शन 27 में दिया हुआ है। प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, प्रॉपर्टी कैश भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स सेक्शन 3 सब सेक्शन 27, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मनी, गुड्स, actionable claims, land, and every description of property situated in India or outside India, and every description of interest, including present or future or vested or contingent interest arising out of or incidental to property। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी या सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर दी, और उससे क्या हुआ, वो जो क्रेडिटर है, श्योरिटी है या गारंटर है, वो ज्यादा पोजीशन, बढ़िया पोजीशन में आ गया। दैट पुट्स हिम इन ए more beneficial position than they would have occupied under section 53 distribution, so it constitutes an avoidable preference। यहां ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस में इंटेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपने वो एक्शन किया, एक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपकी इंटेंशन बैड थी या गुड थी ये नहीं देखना है हमारे, है ना। ये नहीं है कि मैलिफाइड इंटेंशन थी, आपने वो एक्शन किया, ठीक है, तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन अवॉइडेबल प्रेफरेंस। और रेलेवेंट लुक बैक पीरियड यहां पर क्या है, इट इज 2 years फॉर ट्रांजेक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज एंड 1 year फॉर अनरिलेटेड। और ये कहां, 2 साल कहां तक जाना है, फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। उसके अलावा और 44 क्या बोलता है, 44 बोलता है कि अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसका इफेक्ट जो है उसको रिवर्स कर दे, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो उस प्रॉपर्टी को दोबारा लाएंगे सीडी के पास, है ना। ये सब है पीयूएफए ट्रांजेक्शन, और इनके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। एप्लीकेशन का पीरियड हमने देखा था सीआईआरपी में ही, सीआईआरपी में एक हमने रेगुलेशन पढ़ा था जिसमें पीरियड दिया हुआ है अवॉइडेबल ट्रांजेक्शंस के लिए, है ना। 75 days, 115 days एंड 130 days, ठीक है। 75 days फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन दैट देयर आर पीयूएफए ट्रांजेक्शंस। भाई पहले तो अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा ना आरपी, उसके बाद में फिर क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा एंड देन फाइलिंग। फाइलिंग होता है 130 days के अंदर। कोई रेगुलेशन है क्या जो बता सकते हैं आप सीआईआरपी रेगुलेशंस में, पीयूएफए ट्रांजैक्शंस के टाइमलाइन की बात करता है 35A। यस, रेगुलेशन 35A, 75, 115, 130, ठीक। अंडर वैल्यू ट्रांस 45 एंड 46, ये क्या बोलता है, ये बोलता है यहां पर आपने क्या किया, आपने किसी को चीज कोई फ्री में दे दी, you have made a gift, so transactions where the debtor makes a gift or transfers assets for a consideration significantly lower than the value provided by the debtor, so they are deemed undervalued provided they occurred outside the ordinary course of business। Look back periods match preferential transactions 2 years for related parties and 1 year for other parties। Creditors can independently apply to the NCLT if the liquidator fails to report such transactions, ठीक है। ये हमारे को सेक्शन 47 बोलता है। सेक्शन 47 बोलता है कि अगर आरपी या लिक्विडेटर ने फाइल नहीं किया फॉर अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस तो आप भी फाइल कर सकते। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कौन डिटरमिन करेगा कि अंडर वैल्यूड पर हुआ है, तो अंडर वैल्यूड के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो बात है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वाली, ये कौन से सेक्शन में लिखी है, कहां लिखी है। 46(2). वेरी गुड। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी may require an independent expert to assess evidence relating to the value of the transactions mentioned in this, ठीक है। और ये वाली जो ट्रांजैक्शंस है ये वॉइड हो जाएगी, ठीक है। ये वॉइड वाली बात कहां लिखी है कि अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस वॉइड होंगी,
तो काजल किरण जी, ये जो अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन हैं ये वॉइड होंगी, ये बात कौन से सेक्शन में लिखी है? 45. वेरी गुड, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, राइट। नाउ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस। Extortionate credit transactions. So there are transactions involving the receipt of financial or operational debt within 2 years preceding the insolvency. यहां देखो ये जस्ट रिवर्स है। जैसे जो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस थी या अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस थी, उसमें आप क्या कर रहे थे? सीडी वाज पार्टिंग विद द एसेट्स और प्रॉपर्टी। यहां पर क्या हो रहा है? यहां उल्टा ले रहे हैं, ठीक है? यहां रिसीट हो रही है किसकी? फाइनेंशियल या ऑपरेशनल डेट की, लेकिन टर्म्स जो है वो फेवरेबल नहीं है। आपने लोन ले लिया, उसकी टर्म्स अनरीजनेबल है। आपने कोई सप्लाई ले ली, उसकी टर्म्स अनरीजनेबल है। और ये पीरियड 2 इयर्स का है। रिलेटेड या अनरिलेटेड की बात इसमें नहीं है। प्रीसीडिंग दी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट दैट रिक्वायर्ड हाईली एक्सॉर्बिटेंट पेमेंट्स और दे कंटेन अनकंस्टेबल टर्म्स, जो एक रीजनेबल आदमी को सही नहीं लगी। और ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स, तो इस केस में क्या होगा? एक्सटॉर्शनल क्रेडिट ट्रांजेक्शंस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उन टर्म्स को चेंज भी कर सकती है या फिर उस ट्रांजेक्शन को सेट असाइड भी कर सकती है। नाउ देयर आर सम ट्रांजेक्शंस व्हिच आर defrauding the creditors या fraudulent trading, section 66, this is also important. So transactions which are deliberately entered into with the clear intent to defraud creditors or keep assets beyond their legal reach. अब आपको पता है आपकी कंपनी CIRP में जाने वाली है, तो आपने क्या किया? आपने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस कर दी कि वो एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, बट यहां पर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है। 43 में भी आपने यही किया था, लेकिन 43 में फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं थी। यहां क्या है? यहां फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, ठीक है? तो एनसीएलटी कैन ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशंस एंड इंपोज सीवियर पर्सनल लायबिलिटी ऑन कॉम्प्लिसिट डायरेक्टर्स, ठीक। अच्छा, मान लीजिए कि लिक्विडेटर भी मिला हुआ है साथ में, तो क्या होगा? इसके लिए सेक्शन 47 है। 47 क्या बोलता है? अगर लिक्विडेटर ने रिपोर्ट नहीं किया, मान लीजिए, if the liquidator fails to report apparent undervalued transactions despite having sufficient opportunity and information, NCLT can direct the IBBI to initiate disciplinary proceedings against the liquidator. Now stakeholders consultation committee, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। जैसे CIRP में क्या होता है? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, यहां पर है स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी। So the liquidator is required to constitute a stakeholders consultation committee within 60 days from the liquidation commencement date. 30 days claims receipt के लिए है, 30 days claims verification के लिए है, और 60 days में ये कमेटी फॉर्म करनी है। क्या 60 डेज तक कुछ काम नहीं होगा? 60 डेज से पहले क्या पोजीशन होगी? लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया, COC सर कंटिन्यू करेगा। हाँ, COC विल कंटिन्यू, वेरी गुड, COC विल कंटिन्यू एज स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी जब तक ये कमेटी फॉर्म नहीं होती, ठीक है? मैक्सिमम 60 डेज है, पहले भी हो सकता है। द लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी विद इन 60 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट बेस्ड ऑन द कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। सो क्रूशियली द एग्जिस्टिंग कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स functions seamlessly as the consultation committee with identical voting rights in the interim period until the formal stakeholders consultation committee is constituted. अब इसकी पावर्स क्या है? क्या क्या करना है इसको? स्कोप ऑफ कंसल्टेशन एंड एडवाइजरी पावर्स। द स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन, इसका रेगुलेशन है आपका, रेगुलेशन नंबर 31A है, क्या है? क्या रेगुलेशन नंबर है? हाँ 31A है सर। हाँ 31 है, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी, 31A ऑफ liquidation regulations. So the stakeholders consultation committee is empowered to advise the liquidator on critical value impactful matters throughout the process. The appointment and precise remuneration of professionals under Regulation 7. The entire strategy and mechanics of sale under Regulation 32, including pre-bid qualifications, reserve price and marketing strategies. The determination of liquidator fees and execution of fresh valuations under Regulation 35. The continuation, institution or economic rationale
ऑफ मटेरियल सूट्स और लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो ये सब मेजर मेजर काम है स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी। ठीक है, नाउ वोटिंग राइट्स, गवर्नेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर। The voting share of a stakeholders consultation committee member is strictly proportional to their admitted claim relative to the total admitted claims. The SEC advises the liquidator by a majority vote of not less than 66% of representatives voting. ठीक है, while the advice is not strictly binding, if the liquidator, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी में 66% वोटिंग है, वहां पर 66% वोटिंग नहीं है, वहां 66% ऑफ वोट शेयर है। While the advice is not strictly binding, if the liquidator diverges from it, they must record detailed reasons in writing and file them with the NCLT and IBBI within 5 days. ठीक है, ये जो 5 days है, ये 5 days है या 5 वर्किंग डेज है? 5 days. हम्म, सर क्या था क्वेश्चन सर? क्वेश्चन ये है कि स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी ने बोला कुछ, आप बोल रहे हो कुछ, दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट है। हम्म। तो ये जो डिसएग्रीमेंट है, ये आपको कितने दिन में बताना है, और ये मतलब वर्किंग डेज है या 5 डेज? विद इन 5 डेज बोलता है, विद इन 5 डेज ऑफ द सेट डिसीजन। और उसके पूरे अलावा और भी कुछ करना है क्या? सर सर एक एक सर सर पूरे आईबीबीआई में वर्किंग डेज का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है सर। एंड इंक्लूड इट इन द नेक्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपको अपना नेक्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी इंक्लूड करना है ये बात। ठीक है, नाउ एसेट रियलाइजेशन मैकेनिज्म्स एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑप्शंस। ठीक है, अब हमने जब सेक्शन 33 स्टार्ट किया था, तो सेक्शन 33 सबसेक्शन 5 में क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट टू सेक्शन 52, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अलग ट्रीटमेंट है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्टगेज्ड है ना। तो परमिटेड मैनर ऑफ एसेट सेल रेगुलेशन 32, the liquidator is mandated to maximize asset value and can deploy diverse commercial strategies to sell an individual asset on a standalone basis, assets collectively via slump sale or in designated parcels, and the corporate debtor as an intact going concern or the business operations as a going concern. ठीक है, तो इस तरह से बेच सकते हैं। Secured creditors की क्या पोजीशन है? Secured creditors, they have got a structural choice under section 52. A secured creditor in liquidation proceedings is faced with a critical statutory election. ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है, you want to relinquish the security interest. आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, आप उसको रिलिंक्विश करना चाहते हो। तो अगर आपको रिलिंक्विश करना है, तो उसके लिए कहां इंडिकेशन दोगे आप एक फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, आपके पास एसेट ऑलरेडी मॉर्टगेज्ड है, आप चाहते हो भाई मैं रिलिंक्विश कर दूं, तो रिलिंक्विश करने के लिए कैसे इंटीमेट करोगे आप लिक्विडेटर को? सर मैं फॉर्म कितनी में बार है बता सर। चुका हूं ये तो। आपका जो फॉर्म है ना, क्लेम फॉर्म, क्लेम हाँ फॉर्म इसमें में कॉलम नंबर 8A है। हाँ ठीक है, जैसे अगर आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, तो आपके पास फॉर्म डी भरोगे आप, तो फॉर्म डी में क्या क्लेम 8A आएगा, नंबर 8A कॉलम, वेदर सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिंक्विश्ड, यस और नो। ठीक है, ऐसे ही इफ यू आर एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो आपके पास कॉलम नंबर 8A है, फॉर्म सी, वेदर सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिंक्विश्ड, यस और नो। तो आप जब क्लेम फॉर्म भरते हो, उसी में बता दोगे, क्योंकि क्लेम फॉर्म आपको 30 दिन में भरना है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज relinquishing the security interest. The creditor relinquishes its security interest to the liquidation estate and participates in the collective pool, receiving proceeds out of the high priority waterfall under section 53. ठीक है, तो अगर आप रिलिंक्विश करते हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए आपके पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी,
आपके नाम में भी एक दो प्रॉपर्टी है, अब बंटवारा होना है, तो आपको लगता है यार मेरे पास तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी है ना। अगर मैं अड़ गया तो बापू बोलेगा भैया तुम यही प्रॉपर्टी ले लो, बस खत्म बात। लेकिन क्या करेंगे, नहीं पिताजी, हम तो देखो आपके साथ ही मिलके चलते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी भी इसी कॉमन पूल में डाल लो, और जो सबको जैसे बंटवारा होगा तो वैसा कर ले, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, रिलिक्विशिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट। उसको लगता है कि अगर मैं रिलिक्विश कर लूंगा तो मैं तो एक तो प्रायोरिटी में ऊपर में आ जाऊंगा, है ना, उसमें प्रायोरिटी डिफरेंट है। अगर आप रिलिक्विश करते हो तो, और रियलाइज करते हो तो प्रायोरिटी डिफरेंट है। रियलाइज करने पर कम मिला तो आप नीचे चले जाओगे लाइन में, ठीक है। अगर आपको पूरा रियलाइज हो जाएगा फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रियलाइजेशन में कम मिला तो फिर 53 में आप नीचे चले जाओगे बैलेंस के लिए। तो इसीलिए आप कब किस सिचुएशन में रिलिंक्विश करोगे, जिसमें आपको लगता है कि टोटल एसेट्स जो है वो ज्यादा है और मेरा जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो कम है, ठीक है। ये ऑप्शन उसके पास है, सिक्योर्ड क्रेडिट। दूसरा है रियलाइज द सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंडिपेंडेंटली। सो इन दिस केस द क्रेडिटर चूजेस टू रियलाइज इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द एस्टेट। सो इट मस्ट इन्फॉर्म द लिक्विडेटर, आइडेंटिफाई द एसेट एंड अंडरगो स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन। इसको अपना एसेट्स वेरीफाई भी करवाना है, आइडेंटिफाई भी करना है। इट मस्ट पे इट्स शेयर ऑफ CIRP एंड लिक्विडेशन कॉस्ट विद इन 90 days एंड रेमिट एनी सरप्लस रियलाइजेशन टू द लिक्विडेटर, ठीक है। अब एक बात और बता दीजिए मेरे को कि लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस में कहां पर लिखा है कि आइडेंटिफाई करना है एसेट को या उसको वेरीफाई करेगा सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये बात कहां पर लिखी है। ये नहीं कि वो सीधा बेचने पे चला जाएगा, नहीं, लिक्विडेटर को बताएगा पहले। क्योंकि देखो अगर मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी मॉर्टगेज्ड है, ठीक है, किसी क्रेडिटर के पास, उसने सबसे पहले क्या किया, अपना जब फॉर्म भरा, क्लेम फॉर्म भरा, तो उस क्लेम फॉर्म में उसने लिख दिया कि भाई मान लीजिए फॉर्म डी है भरा उसने एज फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो उसमें कॉलम नंबर 8A में भर दिया कि वेदर सिक्योरिटी इंटरेस्ट लिक्विड नो, ठीक है। तो इसका मतलब वो रियलाइज करना चाहता है। अब वो रियलाइज करना चाहता है तो ये बात कहाँ लिखी है कि वो आइडेंटिफाई करेगा एसेट को या लिक्विडेटर वेरीफाई करेगा। एक रेगुलेशन है उसके लिए, क्या रेगुलेशन नंबर है, क्या सेक्शन 52 में देख लो अगर रेगुलेशन में नहीं मिल रहा। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, where the secured creditor realizes security interest under clause B of subsection 1, he shall inform the liquidator of such security interest and identify the asset subject to such security interest to be realized. Before any security interest is realized by the secured creditor under this section, the liquidator shall verify such security interest and permit the secured creditor to realize only such security interest, the existence of which may be proved either by the records of such security interest maintained by an information utility or by such other means as may be specified by the board. ठीक है, मतलब ये सिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोला कि भाई ठीक है मैं रियलाइज करना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एसेट को। देखो ये एसेट है मेरी, मतलब मेरे पास सिक्योरिटी इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर एसेट का है, भाई ये प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट जो है ये मेरे को मॉर्टगेज है, और ये रहा इसका प्रूफ, ये सरसई में रजिस्टर्ड है, MCA में रजिस्टर्ड है, चार्ज है ना, इस तरह से, और लिक्विडेटर उसको वेरीफाई करे। अब एक और बात आती है कि ये आप अपने आप रियलाइज कर रहा है, ठीक है। अब हमने 53 में क्या पढ़ा कि सबसे पहले
जो आरपी है या लिक्विडेटर है, जो सीआईआरपी कॉस्ट है या लिक्विडेशन कॉस्ट है वो देनी है। ठीक है, तो अब इसने तो एसेट अपने आप रियलाइज कर लिया, तो क्या इसको भी सीआईआरपी कॉस्ट या लिक्विडेशन कॉस्ट का शेयर देना होगा? यस और नो? देना होगा यस सर। सर, देना होगा ये 90 डेज के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और अगर उसको कोई सरप्लस रियलाइज हो गया, क्योंकि उसको तो अपने लोन से मतलब है, वो लिक्विडेटर सिक्योरिटी, को पास ऑन कर देगा। हाँ, वो फिर वो लिक्विडेटर को दे देगा। उसके बाद में रिजर्व प्राइस मैकेनिज्म्स एंड ऑक्शन प्रोसेस। सो एसेट्स must ordinarily be sold via electronic auction platforms empaneled by the board. The initial reserve price is fixed based on the asset valuation. If an auction fails, the liquidator can reduce the reserve price by not more than 10% at a time. However, if the valuation was carried out under Regulation 35(1), the liquidator can reduce the reserve price by up to 25% once with the advice of the stakeholders consultation committee. तो नॉर्मली आपको एसेट्स क्या करने हैं? नॉर्मली आपको एसेट सेल करने हैं बाय वे ऑफ ऑक्शन, लेकिन प्राइवेट सेल भी आप कर सकते हो कि जब कोई आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन। ये वाटरफॉल मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शंस पर चलेंगे। तो ये है हमारा वाटरफॉल मैकेनिज्म। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट, इट हैज टू बी पेड इन फुल प्रायोरिटी, वर्कमैन ड्यूज past 24 months and secured debts who have relinquished their security interest, इनका इक्वल पेरी पैसो होगा। फिर वेजेस एंड अनपेड ड्यूज टू एम्प्लॉइज अदर देन वर्कमैन, इनका 12 मंथ्स का है। फिर फाइनेंशियल डेट्स ओड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, ये सारे इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आ जाएंगे, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे ऑपरेशनल हो। फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्यूज एंड सिक्योर्ड डेट्स बैलेंस, जिन्होंने अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिक्विश नहीं किया था लेकिन उनका कुछ बैलेंस बाकी है, ठीक है, तो दिस आल्सो रैंक इक्वली आफ्टर एनफोर्समेंट। और फिर एनी रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज, ऑल रेजिडुअल ऑपरेशनल क्लेम्स, ठीक है, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये है हमारा सेक्शन 53 का वाटरफॉल मैकेनिज्म। The liquidator must distribute the proceeds within 90 days from the actual receipt of realization. Before final dissolution, any unclaimed dividends or undistributed proceeds must be formally deposited into the corporate liquidation account. Stakeholders can claim these funds within 15 years, after which they shall stand transferred to the Consolidated Fund of India. Now, final dissolution. Once the liquidation estate is completely wound up, the liquidator submits a final report and compliance certificate form H to the NCLT. The NCLT then passes an order declaring the corporate debtor officially dissolved. A copy of this order must be filed with the registrar of companies within 7 days, completely ending the legal existence of the entity. But if you are selling it as a going concern, तो फिर आपको क्या होगा? फिर उस केस में ये डिसोल्यूशन नहीं होगा, एक क्लोजर हो जाएगा, क्लोजर ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये था हमारा लिक्विडेशन प्रोसेस इन ए समरी फॉर्म, ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपसे। इसमें हम एक बात और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात जो है कि अभी हम ऑक्शन की बात कर रहे थे, तो एक बार ऑक्शन देख लेते हैं। ये मोड ऑफ सेल रेगुलेशन नंबर 33, स्क्रीन नजर आ रही है? रेगुलेशन नंबर 33 मोड ऑफ सेल। ऑर्डिनरी क्या कहता है? ऑर्डिनरली थ्रू एन ऑक्शन होगी सेल। द लिक्विडेटर shall ordinarily sell the assets of the corporate debtor through an auction in the manner specified in Schedule 1. The liquidator may sell the assets of the corporate debtor by means of private sale only after prior consultation with the consultation committee under Regulation 31A in the manner specified in Schedule 1. ठीक, नॉर्मल मोड ऑक्शन, प्राइवेट सेल सबसे पहले तो प्रायर कंसल्टेशन होना है विद कंसल्टेशन कमेटी, और सरकमस्टांसेस दे रखे हैं
पहला, when the asset is perishable, when the asset is likely to deteriorate in value significantly if not sold immediately, short expiry है, medicines है, कुछ भी. The prior permission of the adjudicating authority has been obtained for such sale, provided that the liquidator shall not sell the assets without prior permission of the adjudicating authority by way of private sale to a related party of the corporate debtor. ठीक है, his related party or any professional appointed by him. The liquidator shall not proceed with the sale of an asset if he has reason to believe that there is any collusion between the buyers or the corporate debtors, related parties and buyers, or the creditors and the buyer, and shall submit a report to the adjudicating authority in this regard, seeking appropriate orders against the colluding parties. मतलब प्राइवेट सेल भी किस किस, ये पहले परमिशन लेनी पड़ेगी. अच्छा, एक यहां पर ऐसा हमें लगता है कि लिक्विडेटर अपनी रिलेटेड पार्टी को भी सेल कर सकता है. आपको ये रेगुलेशन पढ़ने से कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि भाई देखो, मैं लिक्विडेटर हूं, ठीक है, मेरे पास एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, एक कंपनी है जो लिक्विडेशन में है, मेरा ब्रदर उस एसेट को खरीदना चाह रहा है. मेरा ब्रदर कहता है भैया ये फ्लैट तो मुझे सही लग रहा है, आप तो लिक्विडेटर हो, आपको सब कुछ पता है ना. तो अब वो कहता है मैंने पढ़ा है भाई आईबीसी में, आप प्रायर परमिशन लेकर के कर सकते हो. तो आपका क्या कहना होगा उसको? आप It's a PUFE transaction. हाँ जी, It is a PUFE transaction, should not be done. नहीं Sir, पीयूएफई prior- की क्या बात है भाई, परमिशन तो ले लिया आपने, पहले ही Sir, प्रायर परमिशन ले लिया. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के परमिशन से हो सकता है सर. नहीं, आप क्या करोगे, ब्रदर को सेल कर दोगे? सर वैसे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर परमिशन मिली है तो कर सकते हैं. अब मैं इसके लिए ना आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस पर ले जाऊंगा एक बार, कि बहुत सारी चीजें अलाउ हो सकती हैं, लेकिन क्या है कि आपको अपना भी दिमाग लगाना है. ऐसा नहीं कुछ भी कर दो आप. अब आप उसमें लिखा हुआ है, अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस में जाओ तो वहां आपको लिखा है क्या करना है और क्या नहीं करना. आप ना कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ो, फर्स्ट शेड्यूल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस पर जाओ एक बार. मैं यहां निकालूं क्या इसको? यस. एक मिनट, देखो चीजों को ना मिला मिला के पढ़ना पड़ता, तभी समझ में आती है बातें. ये अपडेटेड वेयर कोड, एक मिनट लगेगा, ये लास्ट पॉइंट में कवर करना चाह रहा हूं इसमें. सही है सर, फर्स्ट शेड्यूल. हम्म उसमें ना पॉइंट नंबर 6 पढ़ो. Point number 6. हाँ. In case where the insolvency professional is dealing with assets of the debtors during liquidation or bankruptcy process, he must ensure that he or his relative do not knowingly acquire any such assets, whether directly or indirectly, unless it is shown that there was no impairment of objectivity, independence, or imparity in the liquidation or bankruptcy process, and the approval of the board has been obtained in the manner. सही बात है सर, है ना. सही बात है सर. हाँ तो सर. ये चीज जो है ना, ये भी आपको देखो. मतलब सर ऐसा है कि assets will be transferred at market price, then हाँ, ट्रांसपेरेंट होना also. चाहिए. हाँ हाँ yes. ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, देखो अगर आपके ओपन ओपन ऑक्शन है तो ट्रांसपेरेंसी हो ही गई ना. Perfect perfect ओपन सर. ऑक्शन में कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, then PUFE not attract. सर प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब हम नीचे प्राइस पे सेल करते हैं, नीचे प्राइस पे नहीं सेल कर सकते हैं, राइट?
ये कहता है ना। ये नजर आ रही होगी स्क्रीन आपको, है ना? पॉइंट नंबर 6 नजर आ रहा नहीं? ओके। अच्छा एक मिनट, ये भाई 6 करता हूँ, ये पॉइंट नंबर 6। आई होप नाउ इट इज विजिबल। क्या कहता है? इन केसेस वेयर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज डीलिंग विद एसेट्स ऑफ ए डेटर ड्यूरिंग लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी प्रोसेस, he must ensure that he or his relatives do not knowingly acquire any such assets, whether directly or indirectly, unless it is shown that there was no impairment of objectivity, independence or impartiality in the liquidation or bankruptcy process and the approval of the board has been obtained in the matter। ठीक है, तो आपको क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का भी अप्रूवल ले लो और बोर्ड का भी अप्रूवल ले लो, आपको ऐसा लगता है तो। वैसे तो अवॉइड ही करो ये सब चीजें, है ना, क्योंकि ये सब चीजें करोगे तो आपको आईबीपीआई के कोई भी कंप्लेंट कर देगा, देखो जी ये मिले हुए थे आपस में, ये किया वो किया, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, है ना। अब हम चलते हैं, मोटा मोटा मैंने आपको लिक्विडेशन आज पूरा ही करवा दिया, समरी फॉर्म में, ताकि क्या है कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको सेक्शन वाइज एक बार फटाफट 5 मिनट के अंदर बता देता हूं कि लिक्विडेशन प्रोसेस में होता क्या है। देखो जी, सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन, ये हमने पढ़ लिया। रेजोल्यूशन प्लान आया ही नहीं, आया तो कंप्लाइंट नहीं था, सीओसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो लिक्विडेशन ऑर्डर हो जाएगा, पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगा और उस अथॉरिटी को इंटीमेट कर देंगे जिसके पास सीडी रजिस्टर्ड है, जैसे एमसीए। ठीक है, अब इसके अलावा एक और सिचुएशन हो सकती है कि रेजोल्यूशन प्लान आपका पास हो चुका था लेकिन बाद में कंट्रावेंशन हो गया उसका, तो उस केस में भी जो भी पर्सन कंसर्न्ड है हुज इंटरेस्ट आर प्रेजुडिशियली अफेक्टेड, वो भी एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर लिक्विडेशन। ठीक है, और लिक्विडेशन में 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर डिफरेंट। ठीक है, नया सूट या लीगल प्रोसीडिंग फाइल नहीं हो सकती, पुराने वाली कंटिन्यू रह सकती है, और अगर लिक्विडेटर को कोई इंस्टीट्यूट करनी है प्रोसीडिंग तो उसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल की जरूरत है। ठीक, इट इज डीम्ड टू बी ए नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू द ऑफिसर्स एम्प्लॉइज एंड वर्कमैन। वहां पर छुट्टी नहीं होती ऑफिसर्स एम्प्लॉइज और वर्कमैन के सीआईआरपी में, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ छुट्टी मान ली जाती है कि भाई लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया, अलग से नहीं कि टर्मिनेशन ऑर्डर दोगे अपना, ये ऑर्डर ही अपने आप ही सब कुछ कंप्लीट है। ठीक, अब आपने लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया, उसकी फीस के बारे में हमने पढ़ लिया कि फीस कैसे कैसे डिसाइड होगी। ठीक है, फिर आपको क्लेम्स वेरीफाई करने हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हो और रिजेक्शन के बाद वो एनसीएलटी के पास चला जाएगा। लिक्विडेशन स्टेट बनानी है, यू आर ए फिड्यूशियरी, और क्या क्या उसमें इंक्लूड नहीं करना है, बेसिकली पीएफ ग्रेचुटी वगैरह या एसेट्स बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टीज। फिर पावर्स ऑफ लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किस किस से, ये सेक्शन 37 में है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। ठीक है, ये सारी चीज। कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स, अगर कोई क्लेम नहीं आया तो आप जो आपने सीआईआरपी में कलेक्ट किया था वहां से आप ले सकते। ठीक है, वेरीफाई करना है आपको विद इन 30 डेज, आप एडमिट या रिजेक्ट भी कर सकते हो, बट यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स सीआईआरपी वाला ही प्रोसीजर है, फॉरेन करेंसी वगैरह वगैरह। अपील विद इन 14 डेज। पीयूएफई ट्रांजेक्शंस, इंटेंशन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन सेक्शन 43। 44 में रिवर्सल होगा जो भी 43 में ट्रांजेक्शंस हुई है। 43 में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस। देखो ये क्या कहता है, 43 क्या बोलता है बेसिकली, 43 ये बोलता है कि यू कैन नॉट सिक्योर एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यू कैन नॉट ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी। बट अब आपको मालूम है कि मान लीजिए आपने इंटरिम फाइनेंस लेना है ना, इंटरिम फाइनेंस आप लिक्विडेशन में भी ले सकते हो। पहली तो बात बताओ, लिक्विडेशन में आप इंटरिम फाइनेंस ले सकते हो या नहीं ले सकते, या सिर्फ सीआईआरपी में ले सकते हो?
ले सकते हो, ले कोई तो बार सकते हैं नहीं, सर, पर देयर इज नो बार। अब जब इंटरिम फाइनेंस आप लेने गए, वो बोलेगा भैया मेरे को क्या सिक्योरिटी है, मुझे भी तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट दो। अब आप कहोगे यार ये तो 43 में फंस जाएंगे हम, तो 43 में एक्सेप्शन दे रखी है, ये अगर न्यू वैल्यू है, ठीक है, एनी ट्रांसफर क्रिएटिंग ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेट, ये नजर आ रही हो स्क्रीन आपको, सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्स न्यू वैल्यू and was given at the time of or after the signing of a security agreement that contains a description of such property, and such transfer was registered with an information utility on or before 30 days after the corporate data receives possession of such property। आपने नया लोन लिया तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करोगे ही करोगे, उसके बिना कौन लोन देने वाला है आपको, है ना। तो यहां एक्सेप्शन, कोर्ट ऑर्डर हो, कोर्ट ऑर्डर भी पीयूएफई ट्रांजैक्शंस में आ सकता है। ऑर्डर्स में रिवर्सल है, 45 अंडर वैल्यूड वगैरह हमने पढ़ ही लिया, 45, 46, 47 में अगर आरपी या लिक्विडेटर नहीं रिपोर्ट करता तो क्या करेगा, क्रेडिटर रिपोर्ट कर सकता है उसको। कौन, क्रेडिटर, मेंबर और पार्टनर ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, ही कैन मेक एन एप्लीकेशन। 48 पे ऑर्डर है, 49 में ट्रांजेक्शंस डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर्सनली लायबल हो जाओगे आप अगर आपका इंटेंशन ही बैड है तो। और 50 और 51 में एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। 52 में राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ये हमने पढ़ लिया, है ना, 30 डेज में आप इन्फॉर्म कर दोगे, उसके बाद में यू कैन डील विद द एसेट्स आफ्टर प्रूविंग योर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। 53 वाटरफॉल मैकेनिज्म है, और 54 बोलता है कि आपका ये क्लोजर या डिसोल्यूशन। तो ये था इन ब्रीफ लिक्विडेशन प्रोसेस। अब कल संडे है, कल संडे को आप अपना अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि लिक्विडेशन प्रोसेस आपको, अब आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा लिक्विडेशन प्रोसेस। आज की मीटिंग का पर्पज यही था कि लिक्विडेशन। एक बात और आप कहोगे आपने मीटिंग के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं कि मीटिंग्स का क्या होगा। तो मीटिंग्स के जो प्रोविजन है, वो जो सीआईआरपी वाले प्रोविजन है, वही लिक्विडेशन में भी लगे, ठीक है, कि मीटिंग कोरम क्या होना चाहिए, ये सब चीजें, ठीक है। मीटिंग्स के बारे में ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो सीआईआरपी वाले प्रोविजंस है वही लगेंगे। अब ये बात कहाँ लिखी है, काजल किरण जी बताएंगे, बताइए काजल जी कहाँ लिखी है ये बात कि लिक्विडेशन में वही प्रोविजंस लगेंगे जो सीआईआरपी के हैं, लिखा है कहीं बात ये? सर लिखा सर सेक्शन 33 में पॉइंट 3 रिक्वायर सच ऑर्डर टू बी सिमिलर रिक्वायरमेंट, सॉरी सर गलत बताया। आप 32B देख सकते हो, 32B रेगुलेशन नंबर 32B, कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स ऑफ द कंसल्टेशन कमिटी। The provisions of regulation 18 to 26 of chapter 6 and 7 of CIRP regulations shall apply mutatis mutandis to meetings of the consultation committee under liquidation proceedings। तो जो वहां पर रूल दे रखे हैं वो यहां पर लग जाए, अगर यहाँ कोई स्पेसिफिकली नहीं लिखी है बात, ठीक है जी। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्यों एमबीएस कुमार जी, Yes, fine, everything fine. No questions so far. आपको क्या लगता है कि इस तरह से हम पढ़ें तो ज्यादा जल्दी कवर कर पाएंगे, Yes, perfect. I think है ना? this is a हाँ, very good, yeah, very good method, this one. है ना, हाँ, ठीक Yeah, है, ma'am. ओके, Good. ओके जी, गुड नाइट। And you have already got the previous batch recordings also with you, so आप अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कर सकते हैं। आप Sure. इफ यू आर अहेड तो आप आगे जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि पिछला कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जा सकते हैं। आप मुझसे पूछना चाहे तो आई एम अवेलेबल, लेकिन मुझसे कोई Sure. पूछता ही नहीं है। पहले स्टूडेंट मुझसे बहुत कुछ पूछा करते थे, अब कोई पूछता ही नहीं, पता नहीं क्यों। या तो आप पढ़ते नहीं हो या सब कुछ समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रही क्या।
have to study a lot to ask questions. हाँ जी You have to study a lot to ask questions also, right? ओके जी गुड नाइट Good night. Good night, Thank you. sir. Good night, sir.